So good morning all of you. Today we are going to start a new chapter, chapter 23, the preposition. Okay. Now what is a preposition? Preposition is a word that relates the noun or a pronoun with other words in a sentence. Preposition जो है noun और pronoun के साथ जो दूसरे words use होते हैं उनको relate करता है. It relates the noun or a pronoun with other words in a sentence. Now read the following sentences. The book is on the table. The sheep are in the field. The fan is above the bed. The man is under the tree. The girl is near the gate. Now in these sentences, on, in, above, under, near, they are all called preposition, and a preposition is always followed by a noun or a pronoun. Preposition के आगे हमेशा कोई नाउन या फिर के साथ हमेशा कोई नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. ओके. नाउ द सेम वर्ड यूज्ड एज प्रपोजिशन और एडवर्ब. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रपोजिशंस और एडवर्ब दोनों ही केसेस में यूज़ किए जाते हैं. ओके. सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर वर्ड इज़ अ प्रपोजिशन और एन एडवर्ब. तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वो पर्टिकुलर वर्ब प्रपोजिशन है या फिर एडवर्ब है. So the preposition is always followed by a noun or a pronoun and an adverb, and in case of adverb it is not so. Prepositions में usually कोई noun या फिर pronoun का use किया जाता है, whereas in case of adverb it rarely happens. Okay. So she takes after her mother. He came before the appointed time. So here it is followed by a noun. Okay. So here after and before is a preposition. Whereas in these sentences, his mother arrived soon after. I have met him before. So here after and before is not followed by any noun or a pronoun. So here it is an adverb. Okay. So in the prepositions are usually followed by a noun or pronoun, whereas in case of adverb it is not so. Now the next is the object of the preposition. Read the following sentences. The gift is from Mohit. The news is from Jaipur. In these sentences, the preposition from has objects Mohit and Jaipur. The noun or pronoun that follows a preposition is said to be governed by the preposition, and it is called the object of the preposition. तो preposition के साथ जो particular noun या pronoun का use किया जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन. जैसे यहाँ पे मोहित और जयपुर ये दोनों प्रपोजिशन फ्रॉम को फॉलो करते हैं. ठीक है. ये दोनों प्रपोजिशन फ्रॉम के साथ है यूज़ हुआ है. ओके. सो विदाउट द यूज़ ऑफ दीज नाउन्स द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट. तो अगर यहाँ पे इन दोनों नाउन्स का यूज़ नहीं किया गया तो फिर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. सो हियर मोहित एंड जयपुर बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस प्रपोजिशन. ठीक है. तो प्रपोजिशन के साथ जो नाउन या फिर पर्टिकुलर प्रपोजिशन के साथ जिस पर्टिकुलर नाउन या फिर जो पर्टिकुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन. ओके. Understood. And without the use of these nouns or pronouns, the meaning of this preposition is incomplete. और जब तक आप इस particular noun या फिर particular pronoun का use नहीं करेंगे तब तक इस preposition का meaning incomplete होगा. So the particular noun or pronoun which is used along with the preposition, and without the use of that noun or pronoun, if the sentence seems incomplete, if the sentence is incomplete, then that particular noun or pronoun is called the object of that preposition. तो उस जो किसी भी प्रपोजिशन के साथ जो पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ओके उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बोलते हैं. एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक आप उस प्रपोजिशन के साथ कोई पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे तब तक उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होगा. ओके. सो द पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड along with that particular preposition, that particular noun or pronoun is called the object of that preposition. तो किसी भी preposition के साथ जो proper noun या किसी particular pronoun का use किया जाता है उस noun और pronoun को उस preposition का object बोलते हैं. So that particular noun or pronoun which is used along with that preposition is called the object of that preposition. Okay. Now general rules for using preposition. Where to use which preposition? In which cities, towns and villages. Okay. When we consider them as areas, not as a point on a journey. जो cities और towns, villages के name होते हैं
वहाँ पर आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। जैसे रमेश वॉज बॉर्न इन कोलकाता, नेम ऑफ अ सिटी, दे लिव इन आगरा। तो सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस के नेम्स के साथ आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई लिव इन रेणुकूट, जैसे आप बोल सकते हैं आई लिव इन रेणुकूट, तो यहाँ पे प्रपोजिशन इन का यूज़ हुआ है। तो सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस के नेम्स के साथ आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। सेकेंड इज इन विद द नेम ऑफ द स्ट्रीट। जब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट का नेम लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई अंकल लिव्स इन ताज स्ट्रीट। थर्ड पॉइंट इज इन विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। हर एक दिन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। तो दिन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके साथ भी आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी विल मीट मी इन द आफ्टरनून। एट विथ एड्रेसेस, जब आप किसी पर्टिकुलर एड्रेस मेंशन कर रहे हो, जब आप कहीं का पर्टिकुलर एड्रेस मेंशन करते हैं, एक पर्टिकुलर एड्रेस, एक प्रॉपर एड्रेस मेंशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रपोजिशन एट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल शी लिव्स एट नंबर 36 फतेहाबाद रोड। पॉइंट 5 इज एट विद द रोड नाइट। ओके, आई विल मीट यू एट नाइट। अब नाइट जो है ये भी एक डिफरेंट पार्ट है डे का, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डे, बट विद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, पर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ हम प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। लेकिन नाइट के साथ, जहाँ कहीं भी आपने नाइट लिखा है तो नाइट के साथ आपको प्रपोजिशन एट का यूज़ करना है, ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे, लेकिन नाइट के साथ आपको प्रपोजिशन एट का यूज़ करना होगा। आई विल मीट यू एट नाइट। सिक्स्थ पॉइंट इज इन फॉर थिंग्स एट रेस्ट एंड इन टू फॉर थिंग्स इन मोशन। तो प्रपोजिशन इन का यूज़ इन चीज़ों के लिए करते हैं जो रेस्ट पे है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाया गया हो। और इनटू प्रपोजिशन का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे, उन चीज़ों के लिए करेंगे जिसमें कोई मूवमेंट शो किया गया हो, जिसमें कोई मोशन शो किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर इज़ इन द ऑफिस। अब ये लिखा गया है कि मैनेजर ऑफिस में है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि मैनेजर क्या काम कर रहा है। मैनेजर को कोई मूवमेंट करता हुआ, कोई मोशन, कोई मूवमेंट नहीं दिखाया गया, सिर्फ इतना लिखा है कि मैनेजर ऑफिस में है। सो द फॉर द थिंग्स, फॉर दोज थिंग्स विच आर एट रेस्ट इन विच देर इज नो मोशन, फॉर देयर इन दैट केस यू विल यूज प्रपोजिशन इन। The manager is in the office. And next example is she got into her car and drove away. और preposition into का use, and into preposition is used for those things which are in motion. Now the second example, she got into her car and drove away. तो यहाँ पे motion show किया गया है, here movement is shown, that she got into her car and drove away. So for the things in which there is no motion, which are at rest, you will use preposition in, and for the things which are in motion or in movement, you will use preposition into. Till for time, she had not reached there till 10 o'clock. प्रपोजिशन टिल का यूज़ आप करेंगे जब आपको कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन करना हो, जैसे कि शी हैड नॉट रीच्ड देयर टिल 10 o'clock. सो फॉर पर्टिकुलर टाइम, okay, for mentioning particular time also you will use preposition till along with that particular time. 8th point is with for the instrument and by for the agent. preposition with का यूज़ करेंगे जब कोई इंस्ट्रूमेंट आपको मेंशन करना हो, जैसे कि कट दिस फ्रूट विद अ नाइफ। ओके, cut this fruit, so knife is an instrument. Okay, so here we will use preposition with. The tiger was killed by the hunter. तो by is used for showing the agent. जब आपको ये बताना हो कि कौन सा काम किसके द्वारा किया गया है, वहाँ पर आप preposition by का यूज़ करेंगे. For example, if I say the child was punished by the teacher. Okay, तो यहाँ पे teacher जो है agent है, क्योंकि teacher के द्वारा वो punish हुआ है. ओके, द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर. ओके, टाइगर को शॉट किसने किया था? हंटर ने. तो किसके द्वारा वो टाइगर मारा गया? हंटर के द्वारा मारा गया. ठीक है. द ब्लैक बोर्ड वॉज इरेज्ड बाय द स्टूडेंट. तो ब्लैक बोर्ड किसके द्वारा इरेज किया गया? स्टूडेंट के द्वारा इरेज किया गया. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है एजेंट है. तो कौन सा काम किसके द्वारा किया गया, किसने किया, किसके द्वारा वो काम किया गया, वो होता है एजेंट. जिसने वो काम किया वो होता है एजेंट. और किसके द्वारा वो काम किया गया वो भी मीन्स ऐसे केसेस में जिसके द्वारा वो काम किया जाता है, जिसने वो काम किया वो होता है एजेंट. ओके, सो
इंस्ट्रूमेंट के साथ आप प्रपोजिशन विद का यूज़ करेंगे और किसके द्वारा कौन सा काम किया गया वो रिफ्लेक्ट, वो शो करने के लिए वो आप प्रपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे। और जिसने भी वो काम किया, जिसके द्वारा वो काम किया जाता है, उसको एजेंट बोलते हैं। ओके, सो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के साथ आप प्रपोजिशन विद का यूज़ करेंगे और जिसके द्वारा वो काम किया गया वहाँ पर आप प्रपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे। इन टू डोनेट एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन टू डोनेट बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, इन मतलब उस मतलब इतना टाइम आपको लगेगा, आपको डेफिनेटली इतना ही टाइम लगेगा, तो वहाँ पर आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। और विद इन का मतलब समय से पहले अगर आपका कोई काम, कोई टास्क अगर पूरा हो जाता है तो वहाँ पर आप प्रपोजिशन विद इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे विल रिटर्न इन अ मंथ, वो 1 महीने में आएंगे, तो इसका मतलब उन्हें रिटर्न होने में डेफिनेटली 1 महीने का ही वक्त लगेगा। तो अगर आपको डेफिनेटली कोई टाइम देना है, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करना है, तो वहाँ पर आप प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। और अगर आपको ये मेंशन करना है कि कोई भी टास्क समय से पहले भी पूरा हो सकता है, तो वहाँ पर आप प्रपोजिशन विद इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मानसून विल अराइव विद इन अ मंथ। इसका मतलब ये है कि मानसून सीज़न जो है, बारिश का जो मौसम है, वो 1 महीने के पहले भी आ सकता है। तो प्रपोजिशन इन का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पर हमें ये लिखना हो कि कोई भी काम को पूरा होने में डेफिनेटली उतना वक्त लगेगा, उतना टाइम लगेगा। और विद इन का यूज़ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ये शो करना हो कि किसी भी टास्क को, किसी भी काम को पूरा करने का जो टाइम है वो टाइम से पहले, जितना टाइम दिया गया है उससे पहले भी वो काम पूरा हो सकता है। तो इन का यूज़ हम डिनोट करते हैं जब आपको एक एक्यूरेटली आपको कोई टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करना हो। और विद इन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये शो करना हो कोई भी काम जितना उसको टाइम दिया गया है, टाइम से पहले ही वो काम, वो टास्क अगर पूरा हो सकता है, वो टास्क हो सकता है, किया जा सकता है, तो फिर वहाँ पर आप प्रपोजिशन विद इन का यूज़ करेंगे। 10th पॉइंट इज ऑन फॉर स्टेशनरी थिंग्स एंड अपॉन फॉर मूवमेंट। ऑन फॉर स्टेशनरी थिंग्स, स्टेशनरी थिंग्स का मतलब ये होता है जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। तो प्रपोजिशन ऑन का यूज़ हम उन चीज़ों के लिए करेंगे जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, जो स्टेबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पेन ऑन द डेस्क। पेन पे डेस्क पे पेन रखी है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। सो ऑन इज ऑल्सो यूज फॉर द थिंग्स विच आर स्टेशनरी एंड अपॉन इज यूज इन विच देर इज मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट फेल अपॉन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे गिर गया, सो हियर देर इज अ मूवमेंट। सो ऑन इज यूज फॉर द स्टेशनरी थिंग्स इन विच देर इज नो मूवमेंट एंड अपॉन इज यूज फॉर शोइंग द थिंग्स इन विच देर इज अ मूवमेंट। 11th is from for indicating a point of time and also a place. preposition from का यूज़ हम करते हैं जब आपको टाइम और प्लेस दोनों मेंशन करना हो। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी इन जयपुर फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, 10 बजे से वो जयपुर में रहेगी। तो यहाँ पे प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया टाइम मेंशन करने के लिए। फॉर मेंशनिंग द प्लेस ऑल्सो प्रपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, दे विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क। So for mentioning time and place also we use preposition from. Okay, ये preposition till is also used for time। यहाँ पे preposition till का भी यूज़ किया गया है टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे preposition till का यूज़ टाइम के लिए किया गया है फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग, कि by that time means for particular time means here for preposition till is also used for time. Okay, कि she had not reached there till 10 o'clock, वो 10 बजे तक भी वहाँ नहीं पहुँची। Okay, and here also preposition from can also be used। she will be in Jaipur from 10 AM onwards, वो 10 बजे से जयपुर में रहेगी। Okay, so द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंस इज डिफरेंट। वहाँ पे ये लिखा गया कि वो उस टाइम तक वहाँ पे नहीं पहुँची। ओके, एंड हियर इट इज़ रिटर्न अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर टेंस, कि वो इतने बजे तक वहाँ पे रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 12, बिटवीन फॉर टू एंड अमंग फॉर मोर देन टू। सो प्रपोजिशन बिटवीन इज यूज्ड फॉर शोइंग टू ऑब्जेक्ट्स। between is used for showing two objects. For example, hold the needle between your finger and thumb। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच आपको अगर कोई चीज़ शो करनी है तो वहाँ पर आपको प्रपोजिशन बिटवीन का यूज़ करना है।
द among इज ऑल्सो among इज़ यूज फॉर मोर देन टू, और अगर दो से ज़्यादा चीज़ें अगर आपको शो करना है, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच आपको अगर डिवीज़न या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, तो फिर वहाँ पर आप प्रपोजिशन among का यूज़ करेंगे. The money was divided up among the 4 children. Okay, so preposition between is used to show the relation between the means of two objects only where there is two objects. preposition between का यूज़ आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पर आपको जहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें या फिर दो ऑब्जेक्ट्स मेंशन हो, और जहाँ पे दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच आपको डिवीजन करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो वहाँ पर आप preposition among का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट्स मेंशन हो वहाँ पर आपको preposition बिटवीन का यूज़ करना है. जहाँ पे दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मेंशन हो वहाँ पर आपको preposition, वहाँ पे डिवीजन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको preposition among का यूज़ करना है. अंडरस्टूड. अगर जहाँ पे सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, दो ही ऑब्जेक्ट्स के बीच आपको रिलेशन शो करना है, तो वहाँ पर आप preposition between का यूज़ करेंगे. और जहाँ पर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच आपको डिवीजन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहाँ पर आप preposition among का यूज़ करेंगे. 13th पॉइंट इज beside to indicate by the side of. beside का मतलब होता है बगल में. फॉर एग्जाम्पल ही सैट बिसाइड हिज फादर, वो अपने पापा के बगल में बैठा था. तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में. जैसे मैंने बोला ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के बगल में बैठा था. ओके, ही स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, वो अपने मम्मी के बगल में सो गया, अपनी मम्मी के पास सो गया. तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब किसी के बगल में, किसी के पास में. ओके, सो ही सैट बिसाइड हिज फादर, मतलब वो अपने पापा के बगल में सो गया. तो अगर आपको ये शो करना है कि किसी के पास या किसी के बगल में कोई बैठा है, तो वहाँ पर आपको preposition beside का यूज़ करना है. 14th नंबर, besides to indicate in addition to. besides, in addition to means इसके अलावा भी. फॉर एग्जाम्पल, besides working as an advocate he also writes short stories in his spare time. तो यहाँ पे ये लिखा है कि एडवोकेट होने के अलावा वो अपने फ्री टाइम में शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखता है. तो बिसाइड्स का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर कोई भी पर्सन एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता हो. दिस preposition besides is used in those places where a person performs more than one task at the same time. जैसे मैंने बोला besides studies she is good in singing and dancing, पढ़ाई के अलावा वो सिंगिंग और डांसिंग में भी अच्छी है. ओके, besides writing she is good in recitation and painting. राइटिंग के अलावा उसकी रेसिटेशन और पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं. वो रेसिटेशन अच्छा करती है और पेंटिंग भी अच्छी है. तो बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा भी. बिसाइड्स preposition का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर कोई पर्सन एक से ज़्यादा टास्क कर रहा हो, एक से ज़्यादा टास्क हैंडल कर रहा हो. सो preposition besides is used in those places where a person performs more than one task at the same time. Since with a certain point of time and for with a period of time. तो preposition since का यूज़ करते हैं certain point of time means for showing the long ड्यूरेशन ऑफ टाइम टिल नाउ, मतलब कोई लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम से ले करके, बहुत पहले से ले करके अब तक. ठीक है, अगर आपको कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करना हो तो वहाँ पर आप preposition since का यूज़ करेंगे. एंड फॉर इज़ विद अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको कोई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आपको शो करना हो तो वहाँ पर आप preposition for का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई आंट हैज़ बीन लिविंग इन गोवा सिंस 1995. मेरी आंट गोवा में 1995 से रह रही हैं, मतलब 1995 से लेकर के अब तक वो गोवा में रह रही हैं. सो preposition since का यूज़ करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब बहुत पहले से लेकर के अब तक. ओके, अब तक जो पहले से शुरू होके अब तक चल रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वहाँ पर हम preposition since का यूज़ करेंगे. एंड preposition for is used for a short duration. फॉर एग्जाम्पल, he has been reading the newspaper for 2 hours. वो 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. सो preposition since का यूज़ हम करते हैं बहुत पहले से लेकर के अब तक, मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत पहले से लेकर के अब तक जो काम चला आ रहा हो, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम we use preposition since. okay, and for showing the short duration of time, मतलब थोड़े से टाइम से लेकर के अब तक, for a short duration of time we use preposition for. Now words followed by preposition. Now
सर्टेन, नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ओनली दिस मच प्रपोजिशंस आर देयर, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 14-15 कुछ प्रपोजिशंस यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं जो यूज़ होते हैं. सो हियर सम सर्टेन वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रपोजिशंस. तो कुछ प्रपोजिशंस और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है. कुछ वर्ड्स और प्रपोजिशंस हमेशा एक साथ यूज़ किए जाते हैं. सो हियर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशंस आर गिवन. ये जो सेंटेंसेज है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं. इन एग्जाम्पल्स को सिर्फ आपको रीड करना है. न्यूयॉर्क इज़ फेमस फॉर टॉल बिल्डिंग्स. शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. एवरी पर्सन विशेस फॉर सक्सेस. शी वॉज एंडोड विथ इंटेलिजेंस एंड विट. A large organization can be slow to adapt to change. I was ignorant of political events. The word politics is derived from a Greek word meaning city. I am deeply indebted to my family for all their help. Some plants are tolerant of frost. The risk of infection is confined to relatively small groups. The area is remarkable for its scenery. His problems are associated with unemployment. Nothing would prevent him from speaking out against injustice. Please acquaint me with the facts of the case. American English is significantly different from British English. He has become addicted to drugs. He is highly susceptible to flattery. There is no known cure for the common cold. Most of the problems were due to human error. Wait for me. The sick man died of typhoid. She takes keen interest in social service. We should not laugh at the poor. She has recovered from disease. He was always obedient to his father's wishes. Okay. Now these are only the few examples. ये सिर्फ few examples है, आपको इनको सिर्फ read कर लेना है. Only just read these few examples, these sentences, these prepositions, so you can know that ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे कैसे प्रपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एंड फॉर योर रीडिंग, नथिंग टू means by heart or something like that. Just do the reading of these sentences or examples. The most important point is that you have to go through all the rules of these prepositions. Okay, सबसे important ये है कि ये जितने भी preposition के rules हैं, कहाँ पे कौन से prepositions यूज़ करते हैं, इनको आपको अच्छे से देख लेना है. ठीक है, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सा preposition यूज़ करना है. Okay, so go through read these sentences and examples and go through the rules. 15 rules are given. ठीक है, 15 rules दिए गए हैं आपके बुक में. Go through all these rules of prepositions. Okay, it will help you to solve the exercises. Okay, आपको exercise solve होने में help होगी. So जितनी भी prepositions के rules दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना and read these sentences. और ये जो sentences हैं, इन्हें भी आपको पढ़ लेना है. ओके, जस्ट रीड इट, बस आपको इसका रीडिंग करना है.